آداب عرض ہے MCN اردو نیوز میں آپ کا خیر مقدم۔ ناظرین، میں ہوں قاضی محی الدین۔ خبروں کے اس سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی خاص خبروں پر۔ کینال ایڈوائزری کمیٹی کی اہم میٹنگ منعقد۔ ریاستی وزیر برائے آبی وسائل رادھا کرشن وکھے پاٹل نے لیا ڈویژن کے 7 پروجیکٹس میں پانی کی فراہمی کے لیے کی گئی منصوبہ بندی کا جائزہ اور متعلقہ افسران کو دی ضروری ہدایت۔ اورنگ آباد ڈویژن میں چلائی جا رہی ایک دن گاؤں والوں کے ساتھ نامی مہم کے تحت تعلقہ پھلمبری کے مثالی دیہات کن گاؤں میں پروگرام منعقد۔ راجستھان کے گورنر ہری بھاؤ باگڑے اور دیگر ریاستی وزراء و اراکین اسمبلی ہوئے تقریب میں شریک۔ مذکورہ مہم کی ہری بھاؤ باگڑے نے کی کھل کر تعریف۔ مہاوترن کی جانب سے بجلی کے نرخ میں اضافے کے لیے پیش کردہ تجویز پر MERC نے لی پبلک ہیئرنگ۔ مختلف وفود نے کی متعلقہ کمیشن سے ملاقات۔ بجلی کی قیمتوں میں اضافہ نہ کرنے کا کیا گیا پرزور مطالبہ۔ بجلی چوری پر قابو پانے کے لیے دیے کئی اہم مشورے۔ اور روبوٹ مشینری کے ذریعے مین پائپ لائن پر لیے گئے غیر قانونی نل کنیکشن ڈھونڈنے کا سلسلہ ہے جاری۔ شاہ سوختہ کالونی و سلک ملز کالونی کے 54 غیر قانونی نل کنیکشن ہولڈر سے وصول کیا گیا جرمانہ اور غیر قانونی کنیکشن کیے گئے ریگولرائز۔ خبریں تفصیل سے۔ ریاستی وزیر برائے آب رسانی رادھا کرشن وکھے پاٹل نے علاقہ مرخوڑا میں موجود 7 بڑے تالابوں میں پانی کے ذخائر اور دیگر باتوں سے متعلق جائزہ لیا۔ متعلقہ افسران کو ہدایت دی کہ جولائی 2025 تک پانی فراہمی کے لیے ٹھوس منصوبہ بندی کی جائے۔ ڈویژنل کمشنر آفس کے میٹنگ ہال میں کینال ایڈوائزری کمیٹی کی یہ میٹنگ منعقد کی گئی۔ اس موقع پر جائکواڑی ڈیم، ناندور مدمیشور پروجیکٹ، نمن دودھنا پروجیکٹ، اردھو پین گنگا پروجیکٹ، وشنو پوری و نمن مانار اس طرح کے 7 بڑے پروجیکٹ سے پانی فراہمی کے لیے کی گئی منصوبہ بندی کا جائزہ لیا گیا۔ اس میٹنگ میں ریاستی وزیر اتل ساوے، ریاستی وزیر میگھنا بورڈیکر، رکن اسمبلی ارجن کھوتکر، نارائن کوچے، حکمت اڑان، بابو راؤ قدم، راجو نوگھیرے، ہیمنت پاٹل، وجے سنگھ پنڈت، پرکاش ساڑونکے، رمیش بورنارے، راجیش راٹھوڑ، اشوک چوہان، جیا چوہان، علاقائی کمشنر دلیپ گاوڑے، ایگزیکٹو ڈائریکٹر سنتوش تیرمنوار، اسی طرح متعلقہ اضلاع کے ضلع کلکٹرز، متعلقہ پروجیکٹس کے سپرنٹینڈنگ انجینئرز اور ایگزیکٹو انجینئرز بھی موجود تھے۔ اس میٹنگ میں مذکورہ تالابوں میں پانی کے موجودہ ذخائر، ان کی فراہمی کے لیے کی گئی منصوبہ بندی کا جائزہ لیا گیا۔ اس کے بعد وزیر موصوف نے متعلقہ سبھی افسران کو ہدایت دی کہ آئندہ سال جولائی تک کھیتوں کی سینچائی، صنعتی علاقوں اور عوام کو پانی فراہمی کی جا سکے، اس غرض سے ٹھوس منصوبہ بندی کی جائے۔ जायकवाडी प्रकल्प, नांदूर मधमेश्वर, निम्न दुधना, ओर्धपेन गंगा, मला वाटतं निम्न विष्णुपुरी एक आहे, विष्णुपुरी पेनगंगा, एकूण 7 प्रकल्पांची चर्चा होती आज। पूर्णा, निम्न मनार आणि विष्णुपुरी या सर्व प्रकल्पांच्या कारभार समित्यांची बैठक आज पूर्ण झाली आणि प्रत्येक प्रकल्पाच्या संदर्भामध्ये किती आपण आवर्तन देऊ शकतो याची साधारण चर्चा होऊन त्या बाबतीत त्यात एकमताने सर्व निर्णय झालेले आहेत। हे संपूर्ण करताना सर्व आमदार महोदयांचा, मंत्री महोदयांचा आग्रह होता की हे आवर्तन होत असताना आपल्याला बऱ्याच ठिकाणची आता दुरुस्त्या आपल्या करावं लागतील। तालव्यांच्या दुरुस्ती आहेत, विथेरेकांच्या दुरुस्ती आहेत, बऱ्याच जुने संपूर्ण स्ट्रक्चर झालेले आहेत, त्यासाठी विशेष दुरुस्तीचा कार्यक्रम हाती घ्यावा लागणार आहे। शिवसेना शिंदे ग्रुप की महिला आघाड़ी के ओहदेदारान ने आज सेंट्रल बस स्टैंड को विजिट दी और वहां सिक्योरिटी के नाक़िस इंतज़ामात पर डिपो मैनेजर का घेराव किया।
वाज़ेह है कि गुज़िश्ता दिनों औरंगाबाद पुणे स्वारगेट बस में एक दोशीज़ा की असमत रेज़ी का मामला मंजर आम पर आया था, जिसकी मजम्मत में आज शिवसेना शिंदे ग्रुप की महिला आघाड़ी की खवातीन सेंट्रल बस स्टैंड पहुंची और वहां के कामकाज का जायजा लेने के बाद यहां सिक्योरिटी के नाकिस इंतजामात पर डिपो मैनेजर से जवाब तलब किया और उन्हें मशवरा दिया कि पूना स्वारगेट जैसी घिनौनी वारदात मुस्तकबिल में दोबारा से रूनुमा न होने पाए, इस गर्ज से ठोस कदम उठाए जाएं। स्वारगेट भागामध्ये जी घटना घडलेली आहे, एका अज्ञात तरुणीला सकाळी 5 वाजता एका अज्ञात इसमाने गाडीमध्ये बोलून बलात्कार केलेला आहे तिच्यावरती आणि तिने तिची दैन्य करून कहाणी या ठिकाणी मांडलेली आहे। अशा अनेक घटना विविध आगारात होत असतील, परंतु त्याला वाचा फोडली गेली नाही आणि मला असं वाटतं या ठिकाणी जर अशी घटना घडत असेल तर प्रत्येक आगाराची सुरक्षा ही महत्त्वाची आहे। म्हणून या ठिकाणी आम्हाला आमच्या नेत्यांनी आदेश दिलेले की प्रत्येक आगारात जाऊन पाहणी करा, महिलांची सुरक्षा आहेत का, सुरक्षा रक्षक आहे का, स्वच्छतागृह व्यवस्थित आहे का, हिरकणी कक्ष व्यवस्थित आहे का, जेणेकरून महिलांना इथं कुठल्याही प्रकारचा त्रास होता कामा नये। ही माननीय मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहेबांची ही अशी हे आहे की महिला सगळीकडे सुरक्षित राहिल्या पाहिजे। हुकूमत की जानिब से चलाई जाने वाली मुख्तलिफ स्कीमात और उनसे मुताल्लिक़ देही अवाम में बेदारी पैदा करने की गर्ज से एक दिन गांव वालों के साथ नामी मुहिम चलाई जा रही है, जिसके तहत ताल्लुक़ा फुलमरी के मिसाली देहात किन गाँव में एक तकरीब मुनक़िद की गई, जिसका इफ्तिताह राजस्थान के गवर्नर हरिभाऊ बागड़े के हाथों किया गया। किनगांव में मुनक़िदा इस तकरीब में एमएलए अनुराधा चौहान, सरपंच मनीषा चौहान, नायब सरपंच किशोर चौहान, डिविजनल कमिश्नर दिलीप गावड़े, जिला परिषद के सीईओ विकास मीना, डिप्टी डिविजनल कमिश्नर डेवलपमेंट सुरेश बेदमुथा, डीआरडी मिशन के डायरेक्टर अशोक सिरसे, डिप्टी सीईओ पंचायत व जल जीवन मिशन राजेंद्र देसले, पुणे तामीरात आम्मा के चीफ इंजीनियर अतुल चौहान, डिप्टी सीईओ वीमेंस एंड चाइल्ड वेलफेयर स्वर्णा जाधव और दीगर अफसरान मौजूद थे। इस तकरीब के दौरान गवर्नर हरिभाऊ बागड़े के हाथों ज़िला परिषद स्कूल के अहाते में आंगनवाड़ी के लिए तामीर किए गए 2 स्कूली कमरों का इफ्तिताह भी किया गया। इलाकाई कमिश्नर और ज़िला परिषद के सीईओ ने मिसाली देहात किनगांव के ज़िला परिषद स्कूल में ज़ेर तालीम तलबा के साथ बातचीत की। इसी तरह वहां मौजूद प्राइमरी हेल्थ सेंटर और वेटरनरी अस्पताल को भी विजिट दी। इन दोनों ही आला अफसरान ने गाँव वालों की जानिब से चलाई जाने वाली सरगर्मियों की खुलकर तारीफ़ की और गाँव वालों में सूखा कचरा व गीला कचरा अलग अलग जमा करने के लिए डस्टबिन मुफ्त तकसीम किए गए। प्रोग्राम का तारुफ डिप्टी कमिश्नर डेवलपमेंट सुरेश बेदमुथा ने पेश किया और एक दिन गांव वालों के साथ नामी प्रोग्राम से मुतालिक तफसीली मालूमात फराहम की और कहा कि इलाक़े मरहवा में 76 देहातों में ये प्रोग्राम्स चलाए जाएंगे। इसी तरह राजस्थान के गवर्नर हरिभाऊ बागड़े ने हाजरीन की रहनुमाई करते हुए इस बात पर खुशी का इजहार किया कि यहाँ की आवाम ने इससे पहले भी चलाई जाने वाली सरकारी स्कीमात पर खुसूसी तवज्जो दी, जिसका नतीजा ये निकला कि किनगांव को मिसाली देहात होने का शर्फ हासिल हो गया है। उन्होंने कहा कि यहाँ के लोग अपने बच्चों की तालीम पर भी तवज्जो देते हैं और उन्हें यकीन है कि आगे चलकर वो बच्चे अपने गाँव, ज़िला, रियासत और मुल्क का नाम रोशन करेंगे। उन्होंने मशवरा दिया कि तलबा को निसाबी किताबों के अलावा दीगर किताबों और रिसालों का भी मुताला करना चाहिए और अपनी तहजीब व सकाफत का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए। दीगर मेहमानों ने भी हाजरीन से खिताब किया। आता केंद्र सरकार असू द्या, राज्य सरकार असू द्या, योजनांचा सुकाळ आहे, म्हणजे योजना खूप काही वेगवेगळ्या योजना त्यांनी काढलेल्या आहेत, परंतु त्याच्या अंमलबजावणीच्या बाबतीमध्ये आम्हाला क्षेत्रीय पातळीवर गावामध्ये यायला कधी-कधी जसं मी आता आजचे 2-3 गोष्टी सांगितल्या की अगदी ठरवलं असं काही टॅगलाईन काढली की एक दिवस गावकऱ्यांसोबत तरच येणं होते। आता काहीतरी आपल्याला एक वेगळा कार्यक्रम काढला पाहिजे की जो ज्या कार्यक्रमामुळे आम्ही गावात जाऊ, मग मी जाईल, कधी आमचे जिल्हाधिकारी जातील, कधी जिल्हा परिषद जातील, गावात योजना गावापर्यंत पोहोचवण्यासाठी आम्ही का हे जे एक दिवस गावकऱ्यांसोबत हा उपक्रम आम्ही आपल्या विभागामध्ये हाती घेतलेला आहे। एक गावकऱ्यांसोबत आपण एक नाविन्यपूर्ण कार्यक्रम या ठिकाणी केला, पण आयुक्त साहेब एकच करा की काम सहज होईल त्याची काहीतरी व्यवस्था करा, काम सहज झालं पाहिजे, टाळाटाळ होऊ नये ही लोकांची अपेक्षा आहे। टाळाटाळ होऊ नये। आता हा नवा भारत निर्माण करायचा असेल तो प्रत्येकाने स्वतःचं योगदान
ते जास्तीत जास्त दिलं पाहिजे आणि देशाला आणि समाजाला उपयोगी पडेल ते काम करा. तर त्याच्यासाठीच आपण आहोत. 3-4 लक्षात घ्या. टाळाटाळी बंद करा आणि सहज काम होईल असं एकदा कुठं तरी करा. फेरी वालों से मुतालिक पॉलिसी मुरतब करने की गर्ज से फेरी वाला एडवाइजरी कमेटी की एक अहम मीटिंग गुज़िश्ता रोज़ एडिशनल म्यूनिसिपल कमिश्नर संतोष वाहुले की रहनुमाई में मुनक़िद की गई. टाउन हॉल पर वाक़ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग में मुनक़दा इस मीटिंग में एडिशनल कमिश्नर के अलावा डिप्टी म्यूनिसिपल कमिश्नर अंकुश पांढरे, स्ट्रीट वेंडर्स एडवाइजरी कमेटी के रुकन मोहसिन अहमद खान व दीगर अराकीन के अलावा नेशनल लाइवलीहुड मिशन के अफसरान व मुलाजमीन भी शरीक थे. वाज़ेह रहे कि साल 2020 में म्यूनिसिपल इंतज़ामिया ने स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट के मुताबिक शहर में हाथ गाड़ियों पर कारोबार करने वालों का ऑनलाइन सैटेलाइट सर्वे करवाया था, जिसके बाद 14,098 स्ट्रीट वेंडर्स के रजिस्ट्रेशन किए गए और रजिस्टर्ड फेरी वालों की वोटर लिस्ट तैयार की गई, जिसके बाद स्ट्रीट वेंडर्स एडवाइजरी कमेटी का इंतखाब राय दही के जरिए करवाया गया और इस कमेटी की जानिब से पॉलिसी मुरतब करने की गर्ज से मंगवाए गए एतराज़ात व तजावीज़ पर समाअत की गई. ये मीटिंग म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत की सदारत में बुलाई गई थी, मगर किसी वजह से वो इस मीटिंग में हाजिर न रह सके. लिहाजा ये मीटिंग एडिशनल कमिश्नर संतोष वाहुले की सदारत में मुनक़िद की गई, जिनका इसरार था कि स्ट्रीट वेंडर्स गली कूचों में घूम फिर कर अपना कारोबार करें. पुराने शहर के रास्ते तंग होने के सबब वहाँ ट्रैफिक के मसाइल पैदा हो रहे हैं, मगर फेरी वाला कमेटी के रुकन मोहसिन अहमद खान ने उनकी इस तजवीज़ पर सख्त एतराज़ जताया और बताया कि साल 2020 में सैटेलाइट सर्वे के मुताबिक फेरी वालों के कारोबार करने की जगह बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही उनकी फहरिस्त तैयार की गई है. लिहाजा उनके कारोबारी मकाम को हरगिज़ तब्दील न किया जाए. अगर ऐसा किया जाता है तो वो अमल मरकज़ी हुकूमत के फेरी वाला क़ानून की खिलाफ वर्जी होगा और इंतखाबात के ज़रिए मुंतखबा फेरी वाला कमेटी को ही इस तरह की तब्दीलियाँ करने का क़ानूनी हक़ हासिल है. दीगर अराकीन ने भी इस ज़िमन में अपने मौक़िफ़ वाज़ेह किए. मोहसिन अहमद खान ने ठेले वालों की नुमाइंदगी करते हुए कहा कि फेरी वालों के खिलाफ म्यूनिसिपल इंतज़ामिया की जानिब से जो कार्रवाई की जा रही है वो स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट के खिलाफ है. क़ानून के मुताबिक पहले उन्हें अवामी नुमाइंदों की मौरफ़त समझाया जाना चाहिए. स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जारी की गई गाइडलाइन के मुताबिक उनके साथ सख्ती नहीं की जा सकती. उन्होंने ये भी मुतालबा किया कि मुक़द्दस माह रमज़ान के महीने में हाथ गाड़ी और ठेले पर कारोबार करने वालों को बेवजह परेशान न किया जाए. एक 5-7 साल पहले की बात है ये, लॉकडाउन के पहले. तो जो लोकेशन इनका ऐसा था कि वो जो साइड पे जाते नंदू घोड़ेले जी जो थे मेयर, उस टाइम रोशन गेट के ऊपर मेरे ख्याल है 6 साल या 5 साल पहले की बात है, लॉकडाउन पहले नहीं 20 की मेयर का पीरियड उनका 20 तक था. तो हमने रोशन गेट के ऊपर उसका उद्घाटन उनके हाथ से और कंसर्न पुलिस ऑफिसर के हाथ से रोशन गेट पे कराए थे. तो जो ऐसा ठहराया था जिसको दिया गया था ये एजेंसी को कि वो सैटेलाइट उनकी जो साइट है वो साइट पे जाके वो खुद उनका इंस्पेक्शन करके सैटेलाइट के जरिए से वो करते थे, उनकी लोकेशन बताए. उसके अंदर ये था कि फलाना हाथ गाड़ी वाला जहाँ भी रास्ते पे जा रहा है उससे पूछने का, उसकी माहिती लेने का, उसका आधार है जुर्मे लेने का और कहाँ धंधा करता डिटेल पूछ के सैटेलाइट के जरिए से उन्होंने खींचा है. उसको रिकॉर्ड पे लेके आके पेपर पब्लिकेशन हुआ, इतने लोगों की यादी जिसने फॉर्म भरे थे और उसमें से उन्होंने 14,098 लोगों का फाइनल करके महानगर पालिका ने उसकी जाहिरात निकाली और उस पर किसी को ऑब्जेक्शन है क्या उस समय, उस टाइम में किसी का भी उस पर ऑब्जेक्शन नहीं आया और वो उन्होंने फाइनल कर दिया. इत्तेफाक से वो होना था, उसके बाद वो नहीं हुआ. मैं इसके अंदर जो है तो एक 12-14 साल से कंटिन्यूस इसमें सदस्य हूँ. मेरा भी यहाँ पर से काम है, एनजीओ में हूँ. तो उसके अंदर हमने समय समय पर ये हाकर जोन है, ये है वो है. फिर वो इसमें हमने 10,000 रुपये शासन ने जाहिर करा, लॉकडाउन के 1,500 रुपये जाहिर करा, फिर 15 करे, उसको 20 करे, फिर 50,000 तक लेके आए. फिर उन्होंने देते गए पैसे, परत फिरते गए, उन्होंने अपने देते गए. महावितरण कंपनी की जानिब से बिजली के नर्ख में इजाफे से मुताल्लिक़ भिजवाई गई सिफारिश पर MERC ने अवाम की जानिब से मौसूला एतराज़ात और तजावीज़ पर आज समाअत की.
वाज़ेह है कि बिजली सप्लाई कंपनी ने एक बार फिर बिजली के नर्ख में इजाफे की एक तजवीज़ महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के पास भिजवाई है, जिस पर अवामी एतराज़ात व तजावीज़ की समाअत के लिए मज़कूरा कमीशन ने एक पब्लिक हियरिंग आज स्मार्ट सिटी दफ्तर में मुनक़िद की। इस मौके पर राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार ग्रुप के शहर सदर ख्वाजा शरफुद्दीन ने एक मेमोरेंडम के जरिए कमीशन से मुतालबा किया कि बिजली के नर्ख में इजाफे की तजवीज़ को हरगिज़ मंजूर न किया जाए। उन्होंने अपने मेमोरेंडम में बताया कि पहले ही महावितरण कंपनी के नर्ख दीगर रियासतों की बनिस्बत बहुत ज़्यादा हैं। दीगर रियासतों में 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त फराहम करवाई जाती है, जबकि हमारी रियासत में ज़राअत पेशा अफराद की तादाद बहुत ज़्यादा है। इसी तरह इकनॉमिकल बैकवर्ड क्लास अफराद की आबादी भी बहुत है, जो बिजली के इजाफी बोझ से पहले ही परेशान हैं। उन्होंने बिजली सप्लाई कंपनी की बिजली नर्ख पॉलिसी पर सख्त एतराज़ जताया। उन्होंने कहा कि बाज़ार से अगर हम कोई चीज़ ख़रीदते हैं तो वो जितनी ज़्यादा मिक़दार में ख़रीदी जाए उसकी कीमतें उतनी ही कम होती जाती हैं, मगर यहाँ मामला उसके बरक्स है। जैसे जैसे बिजली सारिफिन का इस्तेमाल बढ़ता जाता है, उनसे बिजली के ज़्यादा दाम वसूल किए जाते हैं, जो उनके साथ सरासर नाइंसाफ़ी है। लिहाजा 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त फराहम की जाए। उसके बाद जितनी ज़्यादा बिजली इस्तेमाल होगी, बल्क क्वांटिटी के मुताबिक उसकी कीमतें कम की जाएं, ताकि बिजली चोरी पर काबू पाया जा सके। ख्वाजा शरफुद्दीन ने इस बात पर भी एतराज़ जताया कि मरकज़ी और रियासती हुकूमतें शमसी तवानाई के इस्तेमाल पर ज़्यादा ज़ोर देने लगी हैं, मगर देखा ये भी गया है कि जिन लोगों ने सोलार पैनल लगाए हैं, उनके इस्तेमाल से ज़्यादा बिजली पैदा होने पर महावितरण उनसे इजाफी बिजली ख़रीद तो लेती है, मगर उसकी कीमत 3 से 4 रुपये फ़ी यूनिट अदा करती है, जबकि ख़ुद ग्राहकों से 1 यूनिट बिजली के लिए 12 रुपयों से ज़ायद रकम वसूल करती है। लिहाजा महावितरण को हिदायत दी जाए कि वो शमसी तवानाई के ज़रिए पैदा करदा जो इजाफी बिजली ख़रीद रहे हैं, उसकी कीमत भी वही अदा की जाए जो वो ख़ुद सारिफिन से वसूल करते हैं। इस मौके पर ख्वाजा शरफुद्दीन के अलावा मीर शौकत अली, सैयद फारूक अली, सरपंच निसार खान और सैयद जुनैद भी उनके हमराह मौजूद थे। ख्वाजा शरफुद्दीन के मुताबिक MERC के अलावा ये मतालबाती मेमोरेंडम रियासती वज़ीर आला, नायब वज़ीर आला और वज़ीर तवानाई को भी भिजवाए गए हैं। उन्होंने इंतबाह दिया कि अगर इनके मतालबात पूरे न किए गए तो राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार ग्रुप की जानिब से अवामी तहरीक शुरू की जाएगी। सिल्क मिल्स कॉलोनी और अतराफ़ की बस्तियों में कम दबाव से पानी सप्लाई होने की शिकायत दूर करने की गर्ज से रोबोट मशीनरी के ज़रिए फॉल्ट तलाश करते वक्त वहां से गुज़र रही 150 खुतर वाली मेन पाइपलाइन पर 54 गैर क़ानूनी नल कनेक्शन पाए गए। म्यूनिसिपल ज़राए से मौसूला इत्तला के मुताबिक म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत की हिदायत पर शहर में गैर कानूनी नल कनेक्शंस तलाश करने के लिए बनाए गए स्क्वाड के चीफ एडिशनल कमिश्नर व चीफ अकाउंट ऑफिसर संतोष वाहुले की रहनुमाई में शाहसोख्ता कॉलोनी, सिल्क मिल्स कॉलोनी इलाके में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की 150 मिलीमीटर खुतर वाली पाइपलाइन से कम दबाव से पानी आने की शिकायत दूर करने की गर्ज से इस पाइपलाइन का चोकअप रोबोट मशीनरी के इस्तेमाल से निकालने के लिए कार्रवाई की गई, तो इस बात का इंकशाफ हुआ कि इस पाइपलाइन पर गैर कानूनी तरीके से 54 नल कनेक्शन गलत तरीके से लिए गए हैं। लिहाजा सभी फेरोल बंद करके हर कनेक्शन होल्डर से 5000 रुपये फीकस जुर्माना वसूल किया गया और उनके कनेक्शन रेगुलराइज किए गए, जिससे म्यूनिसिपल इंतज़ामिया को 2,13,350 रुपयों का रेवेन्यू मौसूल हुआ। ये कार्रवाई एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के फालक की रहनुमाई में डिप्टी इंजीनियर महेश चौधरी, स्क्वाड इंजीनियर रोहित एंगड़े, लाइनमैन शेख कासिम, ईसा खान, मूसा खान, तमीज़ पठान, वैभव भटकर, तुषार पोटपिल्लेवार, स्वप्निल पाइकड़े और सागर डिघोड़े ने अंजाम दी। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के प्रियदर्शनी स्कूल में वर्ल्ड साइंस डे के मौके पर गुज़िश्ता रोज़ एक साइंस एग्जीबिशन मुनक़िद की गई, जिसमें तलबा के हाथों तैयार करदा मॉडल्स रखे गए, जिन्हें हाज़रीन ने खूब पसंद किया। वाज़ेह है कि म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत की हिदायत पर म्यूनिसिपल तलबा की हमाजहत तरक्की की गर्ज से म्यूनिसिपल स्कूलों में मुख्तलिफ सरगर्मियाँ चलाई जा रही हैं, जिसके तहत डिप्टी म्यूनिसिपल कमिश्नर अंकुश पांडरे की रहनुमाई में गुज़िश्ता रोज़ आलमी यौम साइंस के मौके पर प्रियदर्शनी मयूरबन कॉलोनी में मौजूद म्यूनिसिपल स्कूल में साइंस एग्जीबिशन मुनक़िद की गई, जिसका इफ्तिताह तलबा के सरपरस्तों के हाथों किया गया। इस एग्जीबिशन में सोलार एनर्जी, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़, कुदरती तरीके से पानी की ज़ख़ीरा अंदोज़ी, मक़नातीस के खूबसूरत तजुर्बे
तजुर्बात हाइड्रोलिक तरीके से कार वॉशिंग, व्हीकल पार्किंग, निज़ाम चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग, सेंसर के जरिए चोरों से तहफ़्फ़ुज़, निज़ाम तनफ़्फ़ुज़, हैंड क्रैक जनरेटर, हैंड क्रैक लिफ्ट, यूज कंस्ट्रक्शन साइट्स, फायर सेफ्टी सेंसर, ऑटोमेटिक मशीन, वाटर मोशन बोर्ड, अर्थक्वेक अलर्ट सेंसर, इसी तरह दीगर साइंसी आलात की मदद से तैयार करदा खूबसूरत मॉडल्स की नुमाइश की गई। इस एग्जीबिशन के लिए जूनियर केजी से 9वीं जमात तक के 100 तलबा ने हिस्सा लिया और मुख्तलिफ मॉडल्स तैयार किए, जिनका इन तलबा ने डेमो भी हाजरीन के सामने पेश किया। इस नुमाइश को कामयाब बनाने में स्कूल के साइंस टीचर चंद्रप्रकाश जाधव, स्कूल के सदर मुदर्रिस संजीव सोनार, BR राठौड़, तेजस्विनी देसले, स्वाति डिडोरे, रश्मि होनमटे, पूजा सोनवने, सफ़ा पठान और शुभांगी जमधड़े ने अहम रोल अदा किया। पीडी जवड़कर पब्लिक स्कूल के साबिक तालिब इल्म आनंद विटोरे ने 25 साल बाद अपने स्कूल को विज़िट दी और पुरानी यादों को ताज़ा किया। वाज़ेह है कि आनंद विटोरे नामी नौजवान ने इसी पीडी जवड़कर पब्लिक स्कूल से अपनी इब्तदाई तालीम मुकम्मल की और फिर आला तालीम हासिल करने के बाद बर्र-ए-आज़म यूरोप के मुल्क ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में IT इंजीनियर की हैसियत से खिदमत अंजाम दे रहे हैं। 25 साल बाद जब वो अपने वतन लौट आए तो उन्होंने अपने स्कूल को विज़िट दी, जहाँ स्कूल इंतज़ामिया की जानिब से उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। उसके बाद आनंद विटोरे ने स्कूली तलबा की रहनुमाई की और अपने तासुरात का इजहार करते हुए तलबा को अपनी बचपन की यादों से वाकिफ़ करवाया और बताया कि साल 2008 में जब वो MSc इम्तिहान दे रहे थे, उस इम्तिहान से कबल उनके वालिद का इंतकाल हो गया था। उनकी इस मुश्किल घड़ी में SP जवड़कर ने उन्हें दिलासा दिया और उनका हौसला बढ़ाया और मैंने इस इम्तिहान में 93% नंबरात हासिल करके शानदार कामयाबी हासिल की और मैं आज इस ऊंचे ओहदे पर फायज हूँ। उन्होंने अपनी इस कामयाबी का क्रेडिट अपने वालिदैन, अपने उस्ताद SP जवड़कर, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी की रुकन सविता खामगांवकर, स्कूल के हेडमास्टर साबड़े सर और दीगर असातिज़ा को दिया। आनंद विटोरे के मुताबिक कामयाबी सिर्फ अच्छी तालीम और अच्छी नौकरी मिल जाना ही नहीं होती, बल्कि आप जिन हालात से गुजरकर ऊंचा मकाम हासिल करते हैं वही असल कामयाबी है। इसके बाद उन्होंने स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के जिम्मेदारान के अलावा तलबा से दिल खोल कर बात की। वो किस तरह से पढ़ाई करते थे, अपने तजुर्बात से उन्होंने तलबा को वाकिफ़ करवाया। इस मौके पर स्कूल टीचर संधानशी SD, आनंद ताइडे, राजूरे सुशीला मस्के, वीना, ज्योति कोकाटे, अलका पाटिल, अरुणा जोशी, परमेश्वर गायकवाड़, आत्माराम वाहुले, प्रीति वारुंगड़े और श्याम वारुंगड़े भी मौजूद थे। शहर में सफाई इंतजामात दुरुस्त रखने की गर्ज से सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट की जानिब से 52 नुकाती पॉलिसी तरतीब दी गई है, जिस पर आज से अमल शुरू कर दिया गया, जिसके तहत शहर में गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उनसे 500 रुपयों से लेकर 25,000 रुपयों तक का जुर्माना वसूल किया जाएगा। इस ज़िम्न में जारी करदा प्रेस नोट के मुताबिक हमारे शहर को रियासत की सयाहती राजधानी का दर्जा हासिल है और शहर में मौजूद तारीखी असासों को देखने के लिए यहाँ रोज़ाना हज़ारों मुल्की व गैर मुल्की सयाह आते रहते हैं, मगर शहर में जगह जगह फैले कचरे और गिलाजत के अंबार, रास्तों पर थूकी गई पान और गुटकों की पीक, गैर कानूनी होर्डिंग्स, गाड़ियों की गैर कानूनी पार्किंग और रॉन्ग साइड गाड़ियों की आमदरफ्त को देखकर वो लोग हमारे शहर से मुताल्लिक़ गलत तासुर अपने साथ ले जाते हैं। लिहाजा शहर को साफ़ सुथरा रखने और खूबसूरत बनाने की गर्ज से म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने घन कचरा डिपार्टमेंट की जानिब से बनाई गई 52 नुकाती पॉलिसी पर शहरियान से एतराज़ात मंगवाए थे, मगर सिर्फ 3 अफराद ने ही अपने एतराज़ात दाखिल किए, जिसके बाद जी श्रीकांत ने इस पॉलिसी को मंजूरी दे दी, जिस पर आज से अमल शुरू कर दिया गया और पॉलिसी के तहत कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों, रास्तों पर गिलाजत और कचरा फेंकने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, जिनसे 500 रुपयों से लेकर 25,000 रुपयों तक का जुर्माना वसूल किया जाएगा। वज़ीर आज़म सोलर हाउस फ्री इलेक्ट्रिसिटी मुहिम के तहत हमारी रियासत को 100 दिनों के लिए जो टारगेट दिया गया था वो 82 दिनों में मुकम्मल कर लिया गया है। इस मामले में रियासत भर में हमारे ज़िले को चौथा मुकाम हासिल हुआ है। ये इत्तला बिजली सप्लाई कंपनी से मौसूल हुई है।
वाज़ेह है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने गुज़िश्ता साल 13 फरवरी 2024 को प्राइम मिनिस्टर सोलार हाउस फ्री इलेक्ट्रिसिटी स्कीम का ऐलान किया था। स्कीम शुरू किए जाने के बाद 5 दिसंबर 2024 तक रियासत भर में 71,437 मकानात पर सोलार पैनल नस्ब किए गए। उसके बाद रियासती वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने 25 दिसंबर 2024 को वज़ीर आला ओहदे का हलफ लेने के बाद 100 दिन के लिए मुख्तलिफ शोबों को मुख्तलिफ स्कीमात पर अमल करने की गर्ज से टारगेट मुकर्रर करके दिया था। रियासत महाराष्ट्र में वज़ीर आज़म सोलार घर स्कीम के तहत 6 दिसंबर तक 71,437 मकानात पर सोलार पैनल्स नस्ब किए गए थे, जिससे 283 मेगावाट बिजली तैयार की जा रही थी। वज़ीर आला की जानिब से 100 दिन का टारगेट मुकर्रर किया गया, जिसे 82 दिनों में मुकम्मल कर लिया गया और इन 82 दिनों में जुमला 1,25,000 मकानात पर सोलार पैनल नस्ब कर लिए गए, जिनसे 500 मेगावाट बिजली पैदा की जा रही है। वाज़ेह है कि मज़कूरा स्कीम के तहत मरकज़ी हुकूमत की जानिब से 1 किलोवाट बिजली की पैदावार पर 30,000 रुपये, 2 किलोवाट के लिए 60,000 रुपये और 3 किलोवाट बिजली पैदा करने पर 78,000 रुपयों का फंड फराहम किया जाता है। इसी तरह महावितरण की जानिब से सारिफिन को नेट मीटर मुफ्त में फराहम करवाए जाते हैं। छत पर सोलार एनर्जी प्रोजेक्ट के तहत नस्ब किए गए सोलार पैनल से घर की ज़रूरत से ज़्यादा बिजली पैदा होने पर मज़कूरा कंज्यूमर का बिजली बिल सिफर हो जाता है और इजाफी बिजली महावितरण कंपनी खरीद लेती है। एक खातून के साथ सोशल मीडिया पर राब्ता कायम करने से नाराज़ होकर उस 26 साला नौजवान का अगवा कर लिया गया। ये वारदात तालुका कन्नड़ के करंज गांव में पेश आई। इस मामले में पुलिस ने मगविया नौजवान को रिहाई दिलाई है। मगविया नौजवान का नाम सरफराज उर्फ शाह बताया जा रहा है। तफसीलात के मुताबिक सैयद मोहम्मद शोएब अली, मंजूर अली, मोहसिन शेख, सुल्तान तांबोली और जुनैद अली को पुलिस ने इस मामले में गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से पिशोर पुलिस ने 26 साला सरफराज को रिहाई दिलवाई। किडनैपिंग का ये मामला पिशोर पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है। मजीद तहकीकात पुलिस कर रही है। तो या ठिकाणी सरफराज शाह, रऊफ शाह राहणार करंजखेडा हे नमाज पठण करण्यासाठी मस्जिदमध्ये जात असताना त्या ठिकाणी त्यांच्या गाडीला ही पांढऱ्या रंगाची आरोपीची पांढऱ्या रंगाची गाडी आहे, की जी आरोपींनी त्यांना गाडी आडवी लावून व त्यांना चाकूचा धाक दाखवून या ठिकाणी अपहरण केलेले आहे। हे 6 आरोपी बेलापूर, तालुका श्रीरामपूर, जिल्हा अहिल्यानगर या ठिकाणचे आहेत। या आरोपितांनी सदर पीडित यास अपहरण करून घेऊन गेले होते। त्यानंतर तेथील प्रत्यक्षदर्शी जे साक्षीदार आहेत त्यांनी सदरची माहिती फोन करून ही पोलिसांना दिल्याने व पोलिसांना माहिती मिळाल्यावरून आम्ही या ठिकाणी आमच्या पोलीस स्टेशनचे पोहेका वसंत देशमुख, वसंत पाटील, पोहेका विलास सोनोने व पोलीस अंमलदार इतर सर्वांना खातखेडा रोड आणि करंजखेडा फाटा रोड या 2 ठिकाणी नाकाबंदी लावायला सांगितल्याने व सदरची गाडी ही पोलिसांनी अडवून या ठिकाणी जे अपहरणकर्ता आहेत त्यांची सुटका आरोपी यांच्या ताब्यातून केली आहे आणि आरोपी हे सुखरूप आहेत व तसेच आरोपी यांच्या जे पीडित आहेत यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून आरोपी विरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे। तसंच सदर अपहरणकर्ता याचं अपहरण कशासाठी केलं आहे याचा पुढील तपास आपण करीत आहोत। आरोपीचं नेमकं अपहरण करण्याचं कारण काय व त्यांचा उद्देश आणि हेतू काय आहे याबद्दलचाही तपास बाकी आहे। त्याबाबत उद्या माननीय न्यायालयात सदर आरोपी यांना आपण हजर करण्याची तजवीज ठेवून आहोत। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। कैनाल एडवाइजरी कमेटी की अहम मीटिंग मुनक़िद। रियासती वज़ीर बराए आबी वसाइल राधा कृष्ण विखे पाटिल ने लिया डिवीज़न के 7 प्रोजेक्ट्स में पानी की फराहमी के लिए की गई मनसूबाबंदी का जायज़ा और मुतल्लिक़ा अफ़सरान को दी ज़रूरी हिदायत। औरंगाबाद डिवीज़न में चलाई जा रही एक दिन गाँव वालों के साथ नामी मुहिम के तहत ताल्लुका फुलमरी के मिसाली देहात किन गाँव में प्रोग्राम मुनक़िद। राजस्थान के गवर्नर हरिभाऊ बागड़े और दीगर रियासती वज़रा व अरकान असम्बली हुए तकरीब में शरीक। मज़कूरा मुहिम की हरिभाऊ बागड़े ने की खुलकर तारीफ़।
महावितरण की जानिब से बिजली के नर्ख में इजाफे के लिए पेश करदा तजवीज़ पर MERC ने ली पब्लिक हियरिंग, मुख्तलिफ उफूद ने की मुतालिका कमीशन से मुलाकात, बिजली की कीमतों में इजाफा न करने का किया गया पुरजोर मुतालबा, बिजली चोरी पर काबू पाने के लिए दिए कई अहम मशवरे। और रोबोट मशीनरी के जरिए मेन पाइपलाइन पर लिए गए गैर कानूनी नल कनेक्शन ढूंढने का सिलसिला है जारी। शाह सोख्ता कॉलोनी व सिल्क मिल्स कॉलोनी के 54 गैर कानूनी नल कनेक्शन होल्डर से वसूल किया गया जुर्माना और गैर कानूनी कनेक्शन किए गए रेगुलराइज। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहियुद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।